So today's topic is chemical properties of alcohol and phenol. So the laboratory test of alcohol and phenol, this part is deleted. First litmus test is also deleted and reaction with bases is also deleted portion. As you can see, these two parts, laboratory test of alcohol and phenol, in that first test is litmus test and second test is reaction with base. These two reactions is omitted in your syllabus. So we will move towards the third chemical property of alcohol and phenol. Characteristic test for phenols. Third reaction is characteristic. Chemical reaction of phenol is characteristic test for phenol. So how we can identify the given compound which is present in test tube is phenol. So we can identify with the help of this test. Phenol react with neutral ferric chloride. So phenol when react with neutral ferric chloride, then the solution gives deep color, purple, violet, green. Okay, this color is purple, violet, green. This purple or violet or green coloration of ferric phenoxide. This compound is called as ferric phenoxide. Okay, and byproduct is HCl. So this is the characteristic test for phenol. If the phenol is present in test tube, then we have to add the ferric chloride in that solution. Neutral ferric chloride solution, when we react or when we add it to the test tube, then there is formation of deep color, either purple or violet or green. So either of these color formation indicates that there is a presence of phenol in test tube. So byproduct is HCl. So that color product is nothing but the ferric phenoxide. Okay. So this is the test of phenol. Means we can identify the phenol which is present in test tube. Whether the phenol is present in test tube or not, we can identify that. Then fourth distinguishing test. Fourth chemical property or chemical reaction of alcohol and phenol is distinguishing test for alcohol. जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट था फिनॉल के लिए, वैसे ही अल्कोहल के लिए भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है. उसका नाम है लुकास टेस्ट. उसका नाम जो है वो है लुकास टेस्ट. सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी alcohol can be distinguished from each other in laboratory using the Lucas reagent. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल है वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लुकास रिएजेंट से. तो लुकास रिएजेंट जो है वो नथिंग बट दी HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट इज नथिंग बट दी द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2. ओके, Lucas reagent is nothing but the mixture of HCl and ZnCl2. So you must remember this thing that Lucas reagent is equal to HCl plus ZnCl2. So what happens? This is primary alcohol ROH. When Lucas reagent is added, there is a formation of alkyl chloride. There is a formation of alkyl chloride. Okay. So alcohols are soluble in Lucas reagent. ये पहली टेस्ट है अल्कोहल को फाइंड आउट करने की. टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है या नहीं, तो वो सोल्यूबल होता है. अल्कोहल लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल है पर अल्किल क्लोराइड नहीं. समझा आपको? मतलब हेंस क्लियर सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड. समझा? मतलब ये टेस्ट ट्यूब है समझो, तो इसमें जब अल्कोहल है या नहीं है ये हमको फाइंड आउट करना है ये टेस्ट ट्यूब में. तो अल्कोहल है या नहीं है ये अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें डालना पड़ेगा लुकास रिएजेंट. तो
लुकास रिएजेंट डालने के बाद क्या होगा, लुकास रिएजेंट जो है वो सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, ये पहली बात है। ठीक है, सोल्यूबल तो है, पर ये जो लुकास रिएजेंट अल्कोहल से जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है अल्किल क्लोराइड। तो अल्किल क्लोराइड बनाने के बाद, अल्किल क्लोराइड तो बनाता है पर अल्किल क्लोराइड लुकास रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं होता। ये देखो यहाँ पे दिया है कि अल्कोहल सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, अल्कोहल सोल्यूबल है लुकास रिएजेंट में, बट अल्किल क्लोराइड जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं है। ओके, तो वो लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं होने की वजह से वो जो सॉल्यूशन पहले क्लियर सॉल्यूशन था तो वो टर्बिड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चीज होगी, पहले सॉल्यूशन क्लियर होगा, ओके, और क्लियर सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा टर्बिड। टर्बिड मीन्स ऐसे व्हाइटिश या उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे खराब पानी होता है, पानी में अगर गंदगी हुई तो पानी टर्बिड हो जाता है, टर्बिडिटी बढ़ जाती है पानी की। तो इस तरह से क्लियर सॉल्यूशन जो होता है वो टर्बिड हो जाता है। लुकास रिएजेंट रिएक्ट होता है जब अल्कोहल से, तो प्रोडक्ट बनता है अल्किल क्लोराइड। और एक चीज इसकी सिग्निफिकेंट है कि लुकास रिएजेंट डिसॉल्व होता है अच्छे तरीके से अल्कोहल में, पर लुकास रिएजेंट से अल्कोहल रिएक्ट होने के बाद अल्किल क्लोराइड तैयार करेगा, तो ये जो अल्किल क्लोराइड है ये लुकास रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं होता, इस वजह से वो सस्पेंड रहता है उस सॉल्यूशन में और इस वजह से टर्बिडिटी बढ़ती है सॉल्यूशन की। ओके, तो व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जब प्रोडक्ट स्टार्ट होता है फॉर्म होने को तब टर्बिडिटी दिखती है उसमें। ओके, तो टर्बिडिटी उसमें दिखती है। टर्शरी, ये प्राइमरी अल्कोहल के बारे में है। टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट फास्ट एंड रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी थोड़ी लेट दिखेगी, पर अगर टर्शरी अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में जो टर्बिडिटी है वो थोड़ी लेट दिखेगी, पर टर्शरी अगर अल्कोहल हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से टर्बिडिटी जल्दी दिखेगी, इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी टेस्ट ट्यूब में दिखेगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में क्या बोल सकते हैं हम कि सेकेंडरी अल्कोहल टर्न्स द रिएजेंट टर्बिड स्लोली। तो ये टर्बिडिटी जो है इसकी थोड़ी लेट है, ओके, इसकी फास्ट है टर्शरी की, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसकी टर्बिडिटी जो होती है वो स्लो होती है, टर्बिडिटी स्लो होती है सेकेंडरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल्स टर्न द रिएजेंट टर्बिड ओनली ऑन हीटिंग। तो प्राइमरी अल्कोहल में भी एक ट्विस्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी दिखती है रिएजेंट की तो वो हीटिंग से होती है, मतलब ये जो रिएक्शन है इसको हीट देनी पड़ेगी। सेकेंडरी तो स्लो ही होती है और टर्शरी को हीट देने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन फास्ट होती है और टर्बिडिटी इजीली या जल्दी दिखती है। तो ये जो टेस्ट है ये टेस्ट है अल्कोहल को पहचानने के लिए, जैसे फिनॉल को पहचानने के लिए पर्पल, ग्रीन या वायलेट कलर आ रहा था उसका, उस तरीके से ही अल्कोहल को अगर पहचानना है तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है अल्कोहल को पहचानने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो ये सब ए टाइप में लैबोरेटरी टेस्ट थी अल्कोहल और फिनॉल को फाइंड आउट करने के लिए। ए पॉइंट में हमने देखे दो टेस्ट और दो टेस्ट ओमिट थे या डिलीट थे। तो आगे वाला जो टेस्ट है वो देखेंगे हम कि रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ O एंड H बॉन्ड। तो अल्कोहल में जो ROH है वो बॉन्ड ब्रेक होने से कौन कौन से रिएक्शन दिखते हैं। तो पहला रिएक्शन है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। दूसरा रिएक्शन जो है उसमें वो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन जो है दो ही रिएक्शन है उसमें, फिर तीसरा अलग तरह का है एसिटिल डेरिवेटिव वाला रिएक्शन है। तो सी टाइप में और रिएक्शन हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि
इसमें रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो पहला रिएक्शन है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल। अल्कोहल और फेनॉल के एसिडिक कैरेक्टर जो है OH बॉन्ड ब्रेक होने से क्या तैयार होगा, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो है लैबोरेटरी टेस्ट में, फ्रॉम द लैबोरेटरी टेस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन एक्वियस मीडियम फिनॉल शोज वीक एसिडिक कैरेक्टर। तो लैबोरेटरी टेस्ट में हमको समझेगा कि अगर एक्वियस मीडियम है, मतलब वाटर टाइप लिक्विड मीडियम, अगर फिनॉल लिक्विड मीडियम में डाला जाए, एक्वियस मीडियम फिनॉल जो है वो वीक एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, वाइल अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। तो ये पहली बात है कि अगर एक्वियस मीडियम रहा तो फेनॉल जो है वो वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल कैरेक्टर दिखाता है। सो इट इज क्लियर देयरफॉर दैट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स टुवर्ड्स आयनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड इन देम इज डिफरेंट। तो ये बात से क्या हमको पता चला, ये बात से हमको ये पता चला कि जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की और फेनॉल की आयनाइजेशन करने की, मतलब ONH, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आयंस बनेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और ये ब्रेकिंग जो बॉन्ड है O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है या फिनॉल की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि OH जो है वो दोनों में है। अल्कोहल में भी OH होता है एंड फिनॉल में भी बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच होता है, दोनों में होता है। पर ONH का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो रिएक्शन होती है, तो O और H का बॉन्ड पहले ब्रेक होने के लिए वो जो सबस्ट्रेट है, अल्कोहल है या फिनॉल है, जिसमें वो OH बॉन्ड प्रेजेंट है, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसकी खुद की रिएक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो रिएक्टिविटी डिफरेंट होने के वजह से जो अल्कोहल है वो डिफरेंट बिहेव करता है और फिनॉल जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे कि अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल होता है लिक्विड में और फिनॉल जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है लिक्विड या एक्वियस मीडियम में। तो ये रीजन आपको समझा आपको कि वाई अल्कोहल शोज द न्यूट्रल कैरेक्टर and why the phenol shows the weak acidic character in aqueous medium. So the reason is that the reactivity of alcohols and phenols towards the ionization of OH bond is different. OH bond की तरफ उनकी दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होने के वजह से वो जो एसिडिक और अल्कोहल का न्यूट्रल कैरेक्टर है वो अलग अलग होता है। The reason behind this difference lies in extent of stabilization of their respective conjugate base by electronic effect. Okay, तो ये भी एक रीजन है दूसरा कि ये जो है रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है या वीक एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल दिखाता है और न्यूट्रल कैरेक्टर अल्कोहल दिखाता है। तो ये जो है ये होता है किसकी वजह से होता है कि जो रीजन है उसके पीछे डिफरेंस लाइज इन एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसेस। तो वो जो बेस है OH वो कनेक्ट है, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसने बॉन्ड फॉर्म किया है, OH ने बॉन्ड फॉर्म किया है फिनॉल से एंड OH ने बॉन्ड फॉर्म किया है अल्केन से। तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन जो है वो अलग अलग होता है। ओके, रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसिस से अलग अलग होता है उसका कॉन्जुगेशन, मतलब उसका स्टेबलाइजेशन अलग अलग होता है। ओके, सो आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलिब्रियम लाइक दैट ROH H2O। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये O और H में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो OH है ये यहाँ पे कंबाइन होगा और बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O, मतलब H3O प्लस मतलब क्या, हाइड्रोनियम आयन।
ओके। और ये जो R और O है, तो O उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के वजह से उसको निगेटिव चार्ज आएगा। इस वजह से ये जो बन गया ये है अल्कोक्साइड। ये जो बना है उसको क्या बोलेंगे हम? अल्कोक्साइड बोलेंगे। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है O और H के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मैंने बोला कि एक्वियस मीडियम में क्या होता है। एक्वियस मीडियम मतलब वाटर में अगर अल्कोहल डाला जाए तो वो कौन सा कैरेक्टर शो करता है? तो वो न्यूट्रल कैरेक्टर शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों चार्जेस आए हैं, निगेटिव भी चार्ज आया है और पॉजिटिव चार्ज भी आया है। तो दोनों के दोनों चार्जेस आने के वजह से ये जो है प्रोडक्ट ये न्यूट्रल तैयार होगा। ओके। तो ये उसका जो है न्यूट्रल चार्जेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप डिस्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन। तो ये जो अल्किल ग्रुप जो है वो अल्किल ग्रुप, ये जो अल्किल ग्रुप है तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बढ़ा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये जो निगेटिव चार्ज बढ़ा है ये किस वजह से होता है कि अल्किल ग्रुप का इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस डोनेशन कर रहे हो, प्लस दे रहा है उसको। तो अल्किल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से डिस्टेबलाइजेस द अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन को वो क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। तो डिस्टेबलाइज करने के वजह से अल्कोक्साइड आयन जो है वो डिस्टेबलाइज रहता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ अल्कोहल डज नॉट आयनाइजेस मच इन वाटर। इस वजह से अल्कोहल जो है आयंस या आयनाइजेशन नहीं करता ज्यादा। आयोनाइजेस मच इन वाटर, डज नॉट आयोनाइजेस मच इन वाटर। ज्यादा आयोनाइजेशन अल्कोहल का नहीं होता। तो ये कुछ रीजंस है, वो रीजंस दिए हैं कि आयोनाइजेशन ज्यादा क्यों नहीं होता। क्योंकि जो अल्किल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को। और आरओ जो ग्रुप तैयार होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो स्टेबल नहीं रहता, डिस्टेबलाइज रहता है हमेशा वो अल्कोक्साइड आयन। और इस वजह से वो जो आयनाइजेशन जो है वो वाटर में ज्यादा नहीं होता। इस वजह से वो बिहेव्स लाइक अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो अगर आयनाइजेशन ही नहीं हुआ तो उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो जिसकी एक्टिविटी नहीं होती उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी नहीं दिखाएगा अल्कोहल वाटर में, सिर्फ डिजोल्व होगा। इस वजह से उसको न्यूट्रलिटी दिखाएगा वो वाटर में। फेनॉल के बारे में अगर आयनाइजेशन का पॉइंट बोला जाए तो आयनाइजेशन ऑफ फेनॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट फिगर। नीचे जो फिगर दिया है उनसे हमें पता चलेगा, तो वो हम देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है फिनॉल का। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन ने उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वो फिनॉक्साइड तैयार हुआ। ये जो हाइड्रोजन निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे चला जाएगा, इन द सेंस यहाँ पे जाएगा। तो H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये छोड़ दो, ये देखो सिर्फ इसका क्या होगा फिर। इसका रेजोनेंस के स्टेज दिए हैं, ये जो है 5 स्टेजेस जो है वो रेजोनेंस के स्टेजेस है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। और डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले पोजीशन पे आ गया। ओके, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने के बाद पहले पोजीशन पे वो आ गया। ओके, पर जब वो डीलोकलाइज हो रहा था तो बॉन्ड की पोजीशन देखो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और लास्ट की पोजीशन में। और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ पे दोनों में डबल बॉन्ड है, तीनों में सेकंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ स्टेज में डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेज में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो है इसके वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से जो डीलोकलाइजेशन होता है उसका, तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से आयनाइजेशन ऑफ होता है अच्छे तरीके से। तो फिनॉक्साइड आयन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन तैयार हो रहा है। मैंने बोला आयनाइजेशन होता है, तो ये आयनाइजेशन हुआ है, फिनॉक्साइड आयन तैयार हुआ है। सो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पहले कंडीशन में अल्कोहल में स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब जो अल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था ऑक्सीजन को, इस वजह से अल्कोक्साइड जो आयन तैयार हो रहा था तो वो डिस्टेबलाइज था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है, या डीलोकलाइजेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसकी वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होने की वजह से स्टेबिलिटी आती है स्ट्रक्चर में, फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है, और इस वजह से फिनॉल जो है उसका आयनाइजेशन होता है एक्वियस मीडियम में, बट फुल्ली आयनाइजेशन नहीं होता, मॉडरेट आयनाइजेशन होता है, कुछ एक्सटेंट में आयनाइजेशन होता है। मतलब जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ओके, थोड़ा कम अगर आयनाइजेशन हुआ तो वो वीक एसिड बनेगा, और अगर बिल्कुल भी आयनाइजेशन नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल कैरेक्टर दिखाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं। ओके, देख सकते हो आप। तो ये प्रॉब्लम है। तो एस्टरिफिकेशन और एसिटिल डेरिवेटिव का रिएक्शन हम बाद में देखेंगे।